growth. We can take the example of that of the growth itself. Okay, how we can take the example? What are the examples of that of the growth, or what are the types of that of the growth? Not examples exactly, I would say that the types of that of the growth itself. So what are the types of the growth that are remaining present? The first type of the growth, which we can say it as that of what we are representing it as that of the intrinsic growth, and the second type of the growth which is remaining present, we are representing it as that of the extrinsic growth itself. Now, what is this intrinsic growth and what is this extrinsic growth in that case? Yeah. What is Intrinsic means intrinsic? inside and extremis means outside. Yeah, obviously extrinsic, when we are saying that it means outside itself, and intrinsic means it's inside. That means what? Intrinsic growth, it means what? The type of the growth which is taking place from internal part of our body. And what is extrinsic growth? The type of the growth which is taking place from the external surface of our body itself. That thing we are representing it as the intrinsic growth and extrinsic growth, isn't it? Okay, can you just tell any of the growth in our body, like in your body, in my body, in anyone's body, which is extrinsic in nature? Hanji, can Sir, anybody growth let me of know? appendages. Yes, Aditya, which one? Sir, growth of appendages. Growth of appendages. Like, can you take a specific example? The hands, legs. Hands and legs and all these things. Are they extrinsic growth? Sir, hair. Here, body okay. Body here or here, okay, we can say. But here it is also getting it is also getting grown from that of the internal part of that of our body system itself, isn't it? अचानक से तो ऐसा नहीं हो गया ना कि hair आया और सर के ऊपर में चिपक गया. Not like that, isn't it? It is not possible, isn't it? So फिर और अभी आदित्य जी ने हमें बताया अपेंडेजेस वगैरह के बारे में. यार वो इसके लिए भी मैं वैसा ही एग्जांपल ले लेता हूँ. हाथ एंड पैर से बाहर से तो नहीं चिपका है ना. इन दैट केस वो भी तो Growth of अंदर से ही muscle. ग्रेजुअली. यस यस अल्पना बोलो. Growth of muscles. ग्रोथ ऑफ मसल्स, यार वो तो पूरा ही इंटरनल है. Muscles and everything, growth and all these things, they are actually the connective tissues of that of our body, जो हमारे cells वगैरह के साथ related है कि नहीं? तो अभी सब लोग कंफ्यूज. सर हम जो भी एग्जांपल बोल रहे हैं आप तो सारे एग्जांपल को ही पलट दे रहे हो. इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर? इसका मतलब ये हो जाएगा कि Sir, growth of nails. ग्रोथ ऑफ नेल्स. ग्रोथ ऑफ Growth of नेल्स. nails. ओके, ग्रोथ ऑफ नेल्स के लिए अगर हम लोग देख लेते हैं तो फिर ये नेल्स क्या सिर्फ बाहर से ही यहाँ पर लगा रहता है या अंदर से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर बाहर की ओर आ रहा है? अंदर से बढ़ते बढ़ते बाहर. अरे तुमने अपने ही आंसर को कंट्राडिक्ट कर दिया है कि नहीं प्रतीक्षा जी? So what it will be, that is also an intrinsic growth. Do remember one thing, living organism, it never shows any extrinsic growth. ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपने बॉडी हेयर बोला, नेल बोला, अपेंडेजेस बोला, एनीथिंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को जो है वो यहाँ पर शो नहीं करता है. वो हमेशा क्या शो करता है? वो हमेशा वी कैन सी दैट वो इंट्रिंसिक ग्रोथ को वो हमेशा यहाँ पर वो शो करेगा इन दैट केस. ओके बेटा, क्लियर? ओके, बट तो फिर एक्सट्रिंसिक Okay, ग्रोथ sir. कौन शो करेगा? तो फिर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कौन शो करेगा? हु कैन शो द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ? हु कैन शो द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ? सर प्लांट्स. क्यों भाई, प्लांट्स ने क्या गलती किया है कि वो इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं शो करेगा? हर्ष, ऐसा कौन सा स्टेप्स होंगे प्लांट्स के अंदर में जो तुमको लगता है जो एक्सट्रिंसिक है? बता पाओगे बेटा? बता पाओगे बेटा? ऐसा कौन सा सर स्टेप्स हो क्योंकि जाएगा? प्लांट का वो वैसा ही होता है ना, मतलब वो वैसा ही ग्रो होने लगता है. यार मैं ये देख चुका हूँ यार कि जब भी मैं स्टूडेंट्स लोगों से मैं पूछता हूँ यार तुमको कौन सा अच्छा, चलो मैं आप लोगों से एज ए जनरल सवाल, एज ए पोल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ. यार बॉटनी एंड जूलॉजी, बायोलॉजी के दो सब्जेक्ट्स हैं. कितने लोगों को बॉटनी अच्छा लगता है, कितने लोगों को जूलॉजी अच्छा लगता है? चलिए हाथ उठाइए. हाउ मेनी ऑफ यू Sir. लाइक बॉटनी? हाउ Sir, मेनी ऑफ यू लाइक? zoology. हाँ, Sir, जूलॉजी. zoology. प्रतीक्षा ने बोल दिया जूलॉजी. और किसको? Sir, botany. अरे रम्या जी, Sir, वाओ botany. वेरी गुड. वाओ वेरी गुड. बॉटनी, अपर्णा एंड रम्या जी को बॉटनी अच्छा लगता है. वेरी गुड. कोई तो बोला बॉटनी. और बाद बाकी और किसको अच्छा लगता है बॉटनी? यार दो, इतने लोगों में से सिर्फ दो ही लोगों को बॉटनी अच्छा लगता है, बाकी के सब लोगों को जूलॉजी.
प्रतीक्षा जी जूलॉजी क्यों अच्छा लगता है वो बताओ। अल्पना जी को भी बॉटनी अच्छा लगता है, परीघा जी को भी बॉटनी अच्छा लगता है। ओके, वेरी फाइन, वेरी फाइन। सो जूलॉजी इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि हम लोगों के बॉडी से वो रिलेट करता है। आप लोग सोचते हो यार वो हरा हरा सा पौधा जो है वो बाहर में खड़ा हुआ है, उसमें ऐसा क्या चीज ऑकर करेगा, है कि नहीं? ऐसा क्या उसके बारे में, अरे यार एक चीज सोचा करो, डॉक्टर भी बनने जाओगे ना, तो डॉक्टर भी बनने जाओगे तब भी प्लांट का इंपॉर्टेंस हर जगह में है कि नहीं? प्लांट अगर नहीं होते तो मेडिसिन नहीं बनता, ड्रग्स मतलब क्या, मेडिसिन नहीं आते, केमिकल्स नहीं आते, एंड कोई भी प्रोसेस को हम लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों दे आर कंप्लीटली रिलेटेड विद ईच अदर। एंड बॉटनी के लिए अगर मैं देख लूं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लाइक कंसेप्चुअल टॉपिक्स भी बॉटनी के अंदर में रहते हैं। ओके, आप सोचो जो रेस्पिरेशन वाला जो पॉइंट है, सेलुलर रेस्पिरेशन आ गया। अगर हम लोग जो भी खाते हैं खाना, वो खाना खाने के टाइम पे वो खाना हमारे बॉडी के अंदर में जा रहा है, वो खाना जिस तरीके से टूटना चालू होता है वो सबसे पहले कहाँ पर स्टडी हुआ था? वो सबसे पहले तो प्लांट्स में स्टडी होना शुरू हुआ था ना। बायोलॉजी की शुरुआत ही हुई थी दो ऑर्गेनिज्म से। एक हो जाता है, हम लोग बोल सकते हैं जो छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जिसको हम लोग बोल देंगे कि बैक्टीरियल सेल्स, और एक आ जाएगा प्लांट। उसके बाद में हम लोग आए हुए हैं, है ना? और हम लोग आने के बाद सबको डिस्ट्रॉय करने के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं, isn't it? So that's the thing. So that's good. बॉटनी एंड जूलॉजी सबको मतलब इक्वली आप लोगों में से लोगों को पसंद हो रहा है, दैट गुड। सो इफ आई एम सेइंग अबाउट दैट ऑफ द ग्रोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ओके, कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ दिस इज द काइंड ऑफ द ग्रोथ व्हिच इज ऑलवेज ऑकरिंग इन द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको ये याद रखना है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ itself, this is always occurring in that of the organisms which are actually the non living objects itself. ओके, अभी सर अभी किसी ने वायरसेस। वायरसेस क्या कोई ग्रोथ शो करेगा संदेश? सर वो नो सर। होस्ट, सर वो होस्ट पे अटैक करके ग्रो करेगा ना एक्सट्रिंसिकली। कोई एग्जांपल बताओगे? चलो कोविड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। Is it like in an extrinsic manner? Is it attacking over the of the host, and is it like showing its growth in an external form? क्या लग It रहा है? doesn't सर grow. बिफोर It multiplies. संदेश एक्चुअली वही कौस्तव करेक्ट। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, वायरस जो है वो हमेशा एक बड़ा सा लंबा सा एक बॉडी को वो ढूंढने की कोशिश करता है ना? अब वो चाहे वो प्लांट का बॉडी हो, चाहे वो हमारा बॉडी हो, चाहे वो बैक्टीरिया का बॉडी हो। बैक्टीरिया के ऊपर में भी वायरसेस जो है वो अटैक करता है, प्लांट के ऊपर में भी वायरसेस जो है वो अटैक करता है। ओके, तो ये हमारे बॉडी के अंदर में तो अटैक करता ही है। तो जो भी तरीके का वायरसेस हो जो अटैक करता है इस तरीके से, वायरसेस आर ऑलवेज रिक्वायरिंग अ सिंपल बॉडी, जिसके बॉडी के अंदर में वो जाएगा, वो कभी भी उसके बॉडी के बाहर में वो प्रेजेंट होके नहीं रहता है। और उसके बॉडी के अंदर में जाने के बाद वो क्या करेगा, वो उसके सबसे पहले वो उसके जेनेटिकल मशीनरीज एंड सेलुलर मशीनरीज के ऊपर में अपना कब्जा जमाएगा। ओके, एंड जेनेटिकल मशीनरी एंड सेलुलर मशीनरीज के ऊपर में कब्जा जमाने के बाद फिर क्या करेगा, जैसे जैसे ग्रेजुअली इट इज टेकिंग द कंट्रोल ओवर दैट ऑफ द होस्ट बॉडी इटसेल्फ, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ द मल्टीपल मोड वायरल पार्टिकल्स। अब उसको तुम ग्रोथ नहीं बोल सकते हो, इट्स नॉट अ ग्रोथ, it can be an increase in that of the number of the viral particle itself only. Okay, it's not a like an extrinsic form of that of the growth. Extrinsic growth का मतलब कैसे हो जा रहा है? जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अभी बारिश का मस्त एनवायरमेंट है ना? तो अभी जो बारिश का मस्त एनवायरमेंट हो रहा है, आप लोगों ने नॉर्मली ये देख लिया होगा कि बारिश के एनवायरमेंट के टाइम पे जो वुडन डोर्स एंड विंडोज वगैरह है वो स्वेल करते हैं। ये तो अपने नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, ये तो आपने देखा ही होगा, है ना? यस सर। जो वुडन डोर्स एंड विंडोज है वो Yes, यहाँ sir. पर स्वेल करते रहते हैं। तो जब वो वहां पर स्वेल करेंगे उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बाइबेशन, ठीक है ना? दैट प्रोसेस वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज बायोलॉजिकली, उस प्रोसेस को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ व्हाट, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ इम्बाइबेशन इटसेल्फ। ओके, इम्बाइबेशन का मतलब क्या हो रहा है, जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, दैट वाटर इट इज गेटिंग फिल्ड अप एट दैट ऑफ द सरफेस लेयर ऑफ एनी ऑफ द सेल्स इटसेल्फ और एनीथिंग एल्स इटसेल्फ। और जैसे ही वो यहाँ पर जाके मतलब सेल्स इन सेंस पर जो भी डेड कंपोनेंट्स वगैरह है उनके यहाँ पर वो जाके यहाँ पर ऐड हो जा रहा है, और जैसे जैसे वो ऐड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर ऐसे करके वो उसका स्वेलिंग जो है वो चालू हो जाता है, बट सुपरफिशियली चालू होता है। मतलब क्या, एक्सटर्नल सरफेस से उसका यहाँ पर एक्सपेंशन जो है वो चालू होता है, एंड एक्सटर्नल सरफेस से जब उसका एक्सपेंशन चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बी शोइंग अ स्वेलिंग काइंड ऑफ थिंग इटसेल्फ। दैट इज द एक्सटर्नल ग्रोथ। दैट Could you इज give द the example for this? व्हिच वन बेटा?
Which Example example? इसके लिए Another ambition. example. Another example you want? Another Yes. example you want? Okay, let's take the example of seeds. Okay, तुम एक काम करो, हम लोग अभी मत करने जाओ, मतलब बाद में कभी भी we can do it. Like we can take gram seeds. Okay, हम लोग gram seeds वगैरह को ले सकते हैं काफी ज्यादा. एंड gram seeds वगैरह को लेने के बाद हम लोग उसको क्या काम करेंगे कि एक बॉटल के अंदर में हम लोग उसको डाल देते हैं. ठीक है ना. अब ग्राम सीड्स वगैरह को लेके उसको बॉटल के ऊपर में जब हम लोग उसको डालेंगे तो फिर उसमें हम लोग मॉइस्चर या वाटर से हम लोग उसको फिल्ड अप करेंगे. जब हम लोग उसको मॉइस्चर या वाटर से फिल्ड अप कर देंगे, फिल्ड अप नहीं मतलब एक टॉप टू द ब्रिम भी नहीं, एक एवरेज रीजन तक हम उसको फिल्ड अप कर देंगे एंड फिर हम लोग उसको कॉक को लगा देंगे. कुछ वक्त के बाद मतलब एक दिन की वगैरह के बाद हम लोग ये बाद में देखने को ये मिलेगा कि जो सीड्स है दैट सीड्स हैड स्टार्टेड स्वेलिंग इन दैट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इटसेल्फ. ओके, और वो जो जब वो स्वेल करना चालू कर देता है तो वो स्वेल करते करते वो इतना ज्यादा अमाउंट का प्रेशर बॉटल के ऊपर में वो डालता है कि वो जो ऊपर से वो जो कॉक होता है ना, वो कॉक मतलब मतलब टूट के अलग भी हो जाता है. इन दैट केस मतलब like it the cork and the bottle it get burst open. That also you can observe in that case because it exerts so much amount of pressure internally over that of the internal system itself. Okay, that's the case of that of the imbibition itself. Okay beta. एंड मतलब इम्बाइबेशन एक्चुअली का मतलब क्या हो जा रहा है? इम्बाइबेशन मतलब यू कैन से दैट इट इज एक्चुअली यू कैन से दैट एन एक्सटर्नल एब्जॉर्प्शन. We can represent it as that of external absorption, or simply you can say that absorption of that of moisture or absorption of that of the water. Okay, externally with the help of or via that of the dead surface or dead components itself. जो भी डेड कंपोनेंट्स हैं उन डेड कंपोनेंट्स के हेल्प से या तो कोलॉइडल जो मॉलिक्यूल्स हैं उन कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स वगैरह के हेल्प से जब वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन वो वहां पर होता है तो दैट थिंग वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द इम्बाइबेशन. अभी समझ में आया बेटा? इज दिस Yes, क्लियर? sir. Thank you. Yes, sir, clear. ओके, अब मैं आपको एक चीज ये भी बताता हूँ, एक फैसिनेटिंग फैक्ट भी बताता हूँ. हमारे देश में ना इस इम्बाइबेशन. हाँ बेटा, हाँ 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 बोलो बोलो बेटा, बोलो बेटा बोलो. सर ये 10th के टेक्स्ट बुक में कौन से पेज पे? ये हाँ सर, ये पार्ट कौन से पेज पे? ये तुम्हारे 10th के टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्टली नहीं है. मैं तो सिंपली ग्रोथ को डिस्कस करते करते इम्बाइबेशन में मैं आ गया था. इस 10th के टेक्स्ट बुक में वो डायरेक्टली तुमको नहीं मिलेगा. ये सीईटी का कंसेप्ट है. अब तुम लोगों का सीईटी का जो सिलेबस है उसमें हम लोगों के पास में एक वर्ल्ड ऑफ लिविंग बोल के एक टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है. अब वो जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग टॉपिक दिया हुआ है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर में लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर में ये सब कुछ मतलब इन सब कुछ इंक्लूडेड हो जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? समझे? सर 10th का सिलेबस बोला है ना, स्टेट बोर्ड का. हाँ, 10th का सिलेबस बोला हुआ है स्टेट बोर्ड का. एंड उसी के अंदर में यू कैन सी दैट कि जो लाइफ का मतलब जो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उस इंट्रोडक्टरी पार्ट वगैरह के अंदर में दीज पार्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी रिमेनिंग प्रेजेंट. ठीक है बेटा? जहां पर लिविंग नेचर के बारे में बताया जा रहा है, लाइफ के बारे में बताया जा रहा है ना, ऑल दिस थिंग्स. सीईटी का एक्चुअली देखो बेटा, इट्स अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. देयर इज नो सच डिफाइंड सिलेबस. ओके, दे विल बी हैविंग व्हाट दे विल बी हैविंग लाइक वर्ल्ड ऑफ लिविंग इज देयर, पोल्यूशन इज देयर, देन एनवायरमेंटल साइंस इज देयर एंड थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके हर एक चीज के बारे में ही ब्रीफ तुमको दिया गया है. ठीक है बेटा? समझ में आया? पूरा 10th का ही बेस्ड है ना, बोला था ना. हाँ हाँ, पूरा 10th का ही बेस्ड है, पूरा 10th का ही बेस्ड है. दे आर नॉट, आई डोंट थिंक सो दैट दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स. आई डोंट थिंक सो दैट दे ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा. दिस विल नॉट बी देयर, दिस विल नॉट बी देयर. वी आर जस्ट सिंपली डिस्कसिंग अबाउट दैट थिंग. एंड एज यू हैड आस्क्ड दैट ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट ऑफ द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट पार्ट इटसेल्फ. ठीक है ना? आई डोंट थिंक सो दिस इम्बाइबेशन, बट एक्स्ट्रा जान के रखने में क्या हर्ज है कि नहीं हर्ष? क्या बोलते हाँ हो? सर. है कि नहीं? हाँ बोलो. सर ये बोलो ना. 11 के पोर्शन में है क्या, मतलब इसका यस यस continuation? यस 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 11th के एकदम स्टार्टिंग के चैप्टर में ही है. 11th का जब तुम अगर 11th वर्ल्ड चैप्टर में आई गेस. 11th का जो फर्स्ट चैप्टर आता है, 11th ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. ओके, बिकॉज 11th का एकदम 11th जो है उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा होता है. एंड वी कैन से दैट वो स्टार्ट भी आपका प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट से वो ऑकर करता है. ओके, तो पहला जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है. एंड वो जो लिविंग वर्ल्ड वाला जो चैप्टर आ जा रहा है उस लिविंग वर्ल्ड बहुत इजी एक छोटू सा एक चैप्टर है. अब उसी चैप्टर के अंदर में ये सारे फीचर्स प्रेजेंट है. अब उसी के रिलेटेड में अगर हम लोग देख लेंगे तो अगर हम लोग लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर लिविंग से सेंस में हमें तो वो बात करना ही है ना कि क्या होता है लिविंग के फीचर्स एंड एवरीथिंग, इजंट इट? ठीक है? यस सर. या
Okay, so I think so this is clear for everyone. I don't think so that this will be coming in that of your current exam itself. Okay, but yet हमें ready होके रहने में कोई हर्ज नहीं है in that case. Okay, in that case. So if I'm telling you that कि ये जो इम्बाइबेशन को जो अभी हमने डिस्कस किया सीड वगैरह के ऊपर बेस करके, ये जो इम्बाइबेशन का प्रोसेस एंड एवरीथिंग इनके ऊपर में जो हमने अभी डिस्कस किया, ये इम्बाइबेशन के प्रोसेस के ऊपर बेस करके ना हमारे देश में काफी सारे साधु सन्यासी लोग जो है वो काफी ज्यादा मतलब वी कैन से दैट लाइक मतलब फेमस भी हो चुके हैं बाय यूजिंग दिस इम्बाइबेशन प्रोसेस एंड मेनी पीपल। कैन यू जस्ट डिस्क्राइब हाउ? ये एक मैं फैक्ट बता रहा हूँ, एक सिंपल स्टोरी बता रहा हूँ। ये अब ये सीईटी में नहीं है यार, ये सीईटी में तुमको कभी नहीं पूछेगा, मैंने तुमसे बता दिया है। जस्ट सिंपली एज ए फॉर डिस्कशन पार्ट कि ये कैसे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लाई कर सकते हैं ऐसे वाले एक्सट्रिंसिक ग्रोथ वाले फीचर को। दैट थिंग ओनली आई एम टेकिंग इट अप। कैन एनीबडी गेस दैट how the many persons like we can say that who are like famous in this field itself, okay, and like who had been arrested also because of all these kind of things itself, they can show many kind of fraudism, corruptions and all these things. Can anybody let me know how? सिंपली यार अभी जो मैंने बताया सीड का एक्सपेंशन वाला प्रोसेस वो काफी ज्यादा प्रेशरफुल होता है। ओके, सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड मेनी टाइम्स दैट मेनी काइंड ऑफ फ्रॉड पीपल हाउ दे यूज्ड टू करप्ट द सिस्टम, that sometimes they used to say that कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये जो पर्टिकुलर जगह है, इस पर्टिकुलर एरिया या इस पर्टिकुलर जगह के अंदर में से जमीन के अंदर में से आई एम गोइंग टू पिक आउट द लाइक आइडल ऑफ दैट ऑफ अ पर्टिकुलर गॉड इन दैट केस। ओके, so what is happening, it has been observed that at the prior night, in most of the cases at that of the prior night itself, they used to like keep that of the idols statue underneath that of the like that of the soil itself, and उसी के नीचे में बहुत सारा ग्राम सीड्स वगैरह को वो रख देते हैं। एंड जब वो ग्राम सीड्स वगैरह को वो रख देते हैं फिर उसके ऊपर में वो मॉइस्चर वगैरह को अप्लाई करते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे जब सब कुछ काम वगैरह जब चालू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आफ्टर अ वन नाइट सोकिंग ऑफ दैट ऑफ द ग्राम सीड्स इटसेल्फ, वो ग्राम सीड्स ग्रेजुअली एक्सपेंशन करना चालू करता है। एंड जब वो एक्सपेंशन करना चालू करेगा इट विल बी पुशिंग that of what it will be pushing the idol out of that wet soil itself, and वो फिर बाहर आ जाता है। So many kind of practical implications, many kind of practical conceptual things are present within that of this intrinsic and extrinsic growth wala part itself. Okay, so we were discussing about that of these features. So metabolism we had taken already, we had discussed in the last day about metabolism, we had discussed about that of the growth। और क्या features हो सकता है living का, और क्या क्या फीचर्स हो सकता है लिविंग का? हाँ जी, कोई बता पाएगा लिविंग का और क्या फीचर्स आ जाएगा? ये जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये तुम लोगों का सीईटी का पहला यूनिट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ओके, उसी के अंदर में ये सब कुछ पॉइंट्स उसके अंदर में इंक्लूड हो जाना है। दैट इज लाइफ क्या हो जाएगा, देन लिविंग क्या है, डाइवर्सिटी मतलब क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे आ जाएगा, सेल का डिवीजन कैसा है, ये सब कुछ जो इतने दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सब कुछ इसके अंदर में ही इंक्लूडेड होके वो रहता है। सो फॉर दैट रीजन वी आर जस्ट ब्रीफिंग आउट ऑल द स्मॉल फीचर्स इटसेल्फ। हाँ जी, कोई और बता पाएगा और क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं? मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड एनीथिंग एल्स? यस रम्या बोलो। Yes, sir. Reproduction, obviously. ओके, ठीक है, बट कैन रिप्रोडक्शन बी अ यूनिक फीचर? कैन रिप्रोडक्शन बी अ यूनिक फीचर इन दैट ऑफ द लिविंग? लिविंग के अंदर में रिप्रोडक्शन? ओके, No, व्हाई? sir. बिकॉज़ no, because now only we have discussed that all the organisms they are not showing that of the reproduction parameter itself. Yes Harsh बोलो। Sir, Harsh बोलो। moving. मतलब locomotion you are saying, Yes, isn't it? sir. But plants अगर plants के लिए ले लेते हैं तो plants are they showing locomotion? Direct Sir, when active the locomotion? plants are small. No, sir. Active active locomotion तो locomotion. right, active locomotion वो show नहीं Respiration. करेंगे। Sir, they Respiration. show locomotion. Sir, the roots. आई एम सेइंग दैट थिंग रम्या, उसको हम लोग लोकोमोशन नहीं बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग मूवमेंट बोल सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके, we can refer it as that of the movement with response to that of certain external factors। जैसे सिर्फ हम उसमें रूट का ही एग्जांपल क्यों ले, हम उसमें शूट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि लाइट जिस साइड की ओर लाइट गिरता है, शूट उस जो है वो side उसी राइट, शूट जो है वो उसी साइड की ओर वो जनरली ग्रो करेगा। तो ऑब्वियसली वो अपने पास में Sir. क्या हो जाएगा? हाँ बेटा बोलो।
Sir, Sir, a responsiveness to particular type stimulus. of ये सेजल बोलो, पर्टिकुलर टाइप ऑफ sensitivity. सेंसिटिविटी। और इसी से रिलेटेड कोई शायद मुझे बोल रहा था रिस्पॉन्स वगैरह को, किसने बोला? किसी ने शायद Sir, मेंशन किया। responsiveness to Yes, stimulus. yes, we can say that the responsiveness to that of the stimulus, or responsiveness to that of any kind of like external part itself or external factor itself. Okay. Now, can anybody explain me that how this responsiveness or this stimulus towards that of the stimulus or anything, this is coming in that case? Responsiveness of that of the stimulus or this thing, it is coming. Can anybody explain me? Can anyone? कोई एक live Sir. example लेके, हाँ बेटा बोलो। Or when we touch the touch me not plant leaves, it Hmm. closes. It closes. That Wow. means it gives Wow. us the response Wow. when we touch the plant. Very good, very good, very good. Any other? Sir, when we touch a hot object, we Hmm. feel irritation on skin and respond in Yes, flinching. yes. एंड और भी बहुत सारा सिंपल एग्जांपल्स है, बहुत सारे सिंपल एग्जांपल्स हैं। तुम मेरे सामने में खड़े हो, मैंने अचानक से मैंने हाथ उठाया तुमको मारने के लिए, तुम डर गए, तुम चौंक गए, ऐसे तुम हट गए पीछे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? that is also a responsiveness in that case, isn't it? Okay, you are showing a response to that of an external stimulus which your teacher is showing to you in that case, isn't it? और भी बहुत सारा है। ठंडे का माहौल है, बाहर घूमने जा रहे हो मस्त आप लोग एकदम, तो उस टाइम पे जाओगे तो विंटर वेयर्स वगैरह को एकदम मस्त एकदम भर भर के लेके जाओगे तुम लोग, है कि नहीं? That is also significance in that Yes. case. So that is also the responsiveness to that of the stimulus. And हमेशा जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स, it always shows that of the responsiveness to that of the stimulus only. Okay, none of the non-living things or non-living objects जो है वो कभी भी वो responsiveness वगैरह को वो यहाँ पर शो नहीं करेगा। लिविंग ऑब्जेक्ट्स ही वो हमेशा responsiveness को वो यहाँ पर शो करेगा। ओके, हाँ हर्ष बोलो। Or evolution. इवोल्यूशन, ओके ठीक है। तो will it be like a sudden evolution or will it be a progressive evolution? No, sir. Progressive evolution. Yes, जब भी evolution word को आपको include करना है, you have to always say that it will be always has to be a progressive evolution itself. This has to be a progressive evolution. Okay, now what is this progressive evolution? But and progressive evolution के बारे में जानने से भी पहले हर्ष बेटा तुम क्या मुझे बताओगे कि will this progressive evolution will be a unique feature of living or not? Will it be a main defining feature of the living evolution जो है? हर्ष क्या लगता है तुम? Yes, sir. But sir, it will define living. Yeah, obviously, but if I'm taking the example एकदम starting में ही जो हमें किसी ने वो mountain वाला example हमें बताया था, stone वाला example बताया था, वो भी तो वहीं पर ही वही हो रहा है ना कि external growth की वजह से substances जो है वो accumulate हो रहे हैं, substances accumulate हो जाने के बाद gradually उसके shape, उसके size and everything it is getting changed itself, and फिर year after year weathering of rocks are getting occurred and all these things itself, है कि नहीं? वो भी तो evolve हो रहा है ना? Yeah. Are you getting my point? Okay, so evolution and origin we cannot take as an exclusive, or we cannot take as a very most special feature for that of the living, but yes, it's a feature for that of the living itself. जो भी living organism है तो उसको वो like progressive evolution उसको वो show करना ही है in that case. Okay, ऐसा ठीक है। anything else? और कोई feature? एक बहुत ही और एक Sir, even adaptation. adaptation. Wow, very good. Sir, Adaptation. cellular organization. Yes, cellular organization. Adaptation, then we can say that the cellular organization. Now these two will be the unique feature to that of the living, or they will be like a feature to that of the living? Boli, these two will be the unique feature to that of the living, or a simple feature to that of the living itself? क्या आ जाएगा? Sir, unique feature. This will be the unique feature of that of the living itself. किस basis पे सेजल आप बोल रहे हो कि these are the unique feature of that of the living? Can you just clarify me that how you are saying that it is? Just like taking an example. सेजल जी
बोलिए. Can we take some example of adaptation in plants? Can we take some example of adaptation in plants? Yes, sir. Cactus. Yes, wow, good. Cactus क्या रम्या, क्या कैसा एग्जांपल आ जाएगा कैक्टस के अंदर में? Sir, क्योंकि it generally grows in the desert region, so it stores water for a long time for the survival. Good. And for storing the water, what kind of adaptation it is showing? Harsh? Sir, I हाँ? have the example of Christmas tree. Yes, तुम भी As the बताओ. as the leaves are in the formation of a triangle, snow doesn't get accumulated on the leaves of the Christmas tree. Good, So good, that good. it could It is like in this conical pattern itself. So whenever any snow or anything it is falling over that one, automatically it will be dropping it down, isn't it, Harsh? यही बोलना चाहते हो ना बेटा? Isn't it? Yes, sir. चलो हम रम्या जी के टॉपिक वाले आते हैं. कैक्टस वाला पॉइंट जो है, रम्या जी ने ये बताया कि कैक्टस जो है इट इज गेटिंग सेल्फ अडेप्टेड इन ऑर्डर टू शो मोर एंड मोर स्टोरेज ऑफ दैट ऑफ द वाटर. अब मैंने उनसे ये पूछा, आप सब लोगों से ये पूछा कि किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वगैरह का वो स्टोरेज जो है वो शो कर सकता है. सर Okay. सर क्योंकि उस कैक्टस पे कांटे होते हैं तो no one can touch it, therefore water gets stored in it. हाँ. स्टेम मॉडिफाइड होता है. क्या आदित्य? इट इज स्टेम मॉडिफाइड होता है. ठीक है, इट इज स्टेम मॉडिफाइड होते हैं. अब रम्या जी तुमने जो पॉइंट बताया यार कि वो जो टचिंग वाला पॉइंट बताया, तो फिर वो तो यार प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगा क्या? वो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड होगा? हाँ सर, वो रहेगा क्योंकि वो कांटे होते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते हो Sir, evaporation will be less. ट्रांसपिरेशन विल बी लेस. ठीक है बेटा. Yes. इनमें एज बिकॉज अगर लीव वाइडेंड वे में अगर वो ग्रीनिश वाला स्ट्रक्चर टाइप का लीफ अगर इनमें प्रेजेंट होके रहेगा तो उनके अंदर में क्या हो जाएगा? उनके अंदर में ट्रांसपिरेशन विल बी इन अ हायर स्टेट इटसेल्फ. बट एज बिकॉज इनके अंदर में क्या हो जा रहा है, इनके अंदर में वी कैन से दैट कि उस तरीके का कंडीशन नहीं है, वो एक स्पाइनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स में वो प्रेजेंट है. तो अगर वो स्पाइनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट होके रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इनमें ट्रांसपिरेशन का रिडक्शन होगा. एंड अगर ट्रांसपिरेशन का रिडक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? दे विल बी एबल टू कंजर्व दैट ऑफ द वाटर. एक और स्पेशल फीचर होता है कैक्टस में, और वो स्पेशल फीचर क्या हो जाता है कि कैक्टस में द स्टोमेटा, आपको याद रखना है, बाद में भी बहुत ज्यादा काम आएगा, ये सब जीके टाइप ऑफ काइंड ऑफ थिंग है कि इस कैक्टस के अंदर में जो स्टोमेटा है, दैट स्टोमेटा इट रिमेन्स ओपन. स्टोमेटा जो है इट रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग दैट ऑफ और इन द डार्क इटसेल्फ. स्टोमेटा जो है वो डार्क कंडीशन के टाइम पे वो ओपन होके रहता है द स्टोमेटा. ओके, फायदा क्या होगा? एंड आपको ये याद रखना है कि डे टाइम पीरियड पे कैक्टस के अंदर में जो स्टोमेटा है, दैट स्टोमेटा इट रिमेन्स इन अ क्लोज्ड कंडीशन इटसेल्फ. डे पीरियड के टाइम पे द कैक्टस जो है वो यहाँ पर क्लोज, मतलब स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड होके रहता है. इससे फायदा क्या होगा? कोई रिलेट करके बता पाएगा मुझे? कोई रिलेट करके बता पाएगा? सर क्योंकि डे में हीट ज्यादा होती है जिसके कारण वाटर कैन गेट इवेपोरेटेड इजीली. वेरी गुड बेटा, वेरी And- गुड बेटा, वेरी गुड. सो स्टोमेटा अगर डे के टाइम पे अगर वो क्लोज होके रहेगा तो ऑटोमेटिकली पानी जो है वो एस्केप नहीं हो पाएगा. एंड इफ द वाटर इज नॉट एबल टू एस्केप तो ऑटोमेटिकली वाटर लाइक इट विल बी गेटिंग कंजर्व्ड इटसेल्फ. नाइट के टाइम पे, डार्क कंडीशन के टाइम पे इनमें स्टोमेटा ओपन होके रहता है, तो इनमें गैसियस जो एक्सचेंज है, जो CO2 वगैरह का जो ट्रांसफर है, CO2 वगैरह का जो एक्यूमुलेशन वगैरह हो जाता है, वो CO2 वगैरह का एक्यूमुलेशन वो कब ऑकर करेगा? CO2 वगैरह का एक्यूमुलेशन इट विल बी ऑकरिंग विद इन दैट ऑफ द डार्क कंडीशन इटसेल्फ ओनली. ओके, मॉर्निंग के टाइम पे नॉर्मल प्लांट्स में क्या हो जा रहा है, दूसरे टाइप के प्लांट्स में क्या हो जा रहा है, कोई भी आप मैंगो ट्री ले लो, आप बैनियन ट्री ले लो, कोई भी तरीके के ऐसे टाइप का जो प्लांट्स हैं, उन सब प्लांट्स के टाइम पे क्या हो जाएगा कि डे पीरियड के टाइम पे जो स्टोमेटा है वो स्टोमेटा ओपन होके रहता है. एंड उसी वक्त में उनमें CO2 या गैसियस एक्सचेंज या गैसियस ट्रांसफर वगैरह जो है वो उनमें ऑकर करता है. बट इनमें द प्रोसेस इज कंप्लीटली रिवर्स इटसेल्फ इन दैट केस. ओके, तो याद रखिएगा दैट इज आल्सो अ स्पेशल फीचर ऑफ दैट ऑफ द एडेप्टेशन इटसेल्फ इन दैट केस. ओके सर, ये एडेप्टेशन का एग्जांपल था स्टोमेटा का. yes, this is an example of adaptation obviously. Yeah, ठीक है because ना? I got Even left now, that's why.
Yes, yes, Aparna. And even you can take that example also, beta. Like a few times back only, I think so Harsh and other students, Aditya and others, they had said that in cactus, the leaf are getting modified into the spiny-like structure and to reduce the rate of the transpiration. That is also the example of adaptation only. Okay, beta. ठीक है? Yes, sir. If even we can take more of the like adaptable features in plants, जैसे tendrils वगैरह का formation देखे हो ना? Tendrils वगैरह का formation जो है, have you seen the pea tendrils? Tendrils वगैरह देखे हो? No, sir. टेंड्रिल्स नहीं देखे हो? आपने कभी ऐसा देखा है कि मान लेते हैं कि ऐसा कोई एक लीफ है, ठीक है, मैं एक हाइपोथेटिकल एक थियोरेटिकल लीफ बना रहा हूँ एंड आप उसके नीचे से ऐसे 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 कुछ ऐसे काइंड ऑफ थिंग देखे हो जो ऐसे लटकता हुआ फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से प्रेजेंट होके रहता है, जो एक पर्टिकुलर प्लांट से ग्रो करके वो कोई एक पर्टिकुलर और एक सॉलिड सपोर्ट वगैरह के साथ वो यहाँ पर कंप्लीटली वी कैन से दैट वो अटैच्ड होके रहता है. हैव यू एवर सीन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स? Yes, sir. देखा है. हाँ, देखा है ना? मनी प्लांट Yes, देखे हो sir. घर पे? मनी sir, मनी प्लांट में yes, तो देखे sir. हो ना? Yes, Climber. करेक्ट. नॉट क्लाइंबर इज अ फॉर्म ऑफ दैट ऑफ द प्लांट. हम लोग इस ये ऐसा टाइप का जो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, इट इज नॉट ओनली इन द मनी प्लांट, यू कैन से इट इज प्रेजेंट इन दैट ऑफ द लाइक इन पी प्लांट्स आल्सो एंड इन ऑल एल्स. ओके, तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा? दैट लटकता हुआ थिंग, that thing we are representing it as rather tendrils itself. okay, वो generally tendrils जो है वो यहाँ पर anchoring वगैरह या support वगैरह को वो यहाँ पर provide करवाने में वो यहाँ पर help करता है. Are you getting my point? ठीक है? okay, so ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें टिपिकल लाइक एडेप्टेशन का एग्जांपल होता है. प्लांट्स सबसे ज्यादा वे में वो अपने आप को लाइक अडेप्ट करते हैं, बहुत ज्यादा वे में उनमें एडेप्टेबिलिटी जो है वो आई वुड से दैट आई फील दैट कि एनिमल से भी काफी ज्यादा, बिकॉज दे आर लाइक नेचुरली रेजिस्टिंग, नेचुरली लाइक एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इटसेल्फ, जिनको बाहर में एनवायरमेंट के साथ उनको रहने के लिए, उनको एनवायरमेंट के साथ जूझने के लिए they have to show more and more amount of that of the adaptation itself in that case. okay, ठीक है? so for that reason हम लोग ये बोलेंगे कि adaptation has to be always a feature of the living. now cellular organization, obviously each and every living organism it will be showing the cellular organization itself in that case. okay, cellular organization नहीं होगा तो वो living organism होगा ही नहीं, या life का वहां पर definition होगा ही नहीं in that case, है कि नहीं? further way में we can take one more unique feature. इसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा. वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस फीचर एज दैट ऑफ होमियोस्टेसिस. हैव यू हर्ड ऑफ दिस फीचर एनी टाइम? हैव यू हर्ड ऑफ दिस Yes, होमियोस्टेसिस? sir. बहुत बार सुना है. क्या है? व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? व्हाट इज होमियोस्टेसिस? सर बस सुना है. हर्ष बहुत Sir, सही. sir, हाँ, I बोलो. guess sir, body का temperature maintain करने के लिए. यस, वेरी गुड सेजल, वेरी गुड सेजल. हम लोग स्वेट क्यों करते हैं? व्हाई वी यूज्ड टू स्वेट? और कभी जब हम लोग स्वेट करते हैं, कभी आपने मतलब एक्सेसिव अमाउंट में जब आप खेल रहे हो या एक्सरसाइज आप करते हो या कुछ भी है, तो उस टाइम पे यू विल बी फीलिंग दैट लाइक sweating is coming and all these things, and if you're touching your skin at that time or if you're touching that sweat at that time, it will be warm, है कि नहीं? so why this is show and immediately sweat निकलने के बाद से आप देखोगे कि अपना जो बॉडी है वो बॉडी एकदम मस्त वे से वो बॉडी क्या हो जाएगा, वो मस्त वे से वो एकदम कूलिंग एक इफेक्ट आ जाता है. ओके, होमियोस्टेसिस इज फॉर दैट वन ओनली. होमियोस्टेसिस क्या काम करता है? होमियोस्टेसिस इट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. होमियोस्टेसिस वो क्या काम करेगा? वो बाहर का एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को एक वे से वो इंटरनल एनवायरनमेंट को वो एक कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, बाहर के एनवायरनमेंट में चाहे जो भी चेंजेस क्यों ना हो जाए. तो इसमें ऑटोमेटिकली व्हेनेवर वी आर लाइक शोइंग दैट ऑफ द स्वेटिंग और दीज काइंड ऑफ थिंग इटसेल्फ, तो स्वेटिंग वगैरह हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर में से जो हीट है, उन हीट को वो जो स्वेट है, वो मॉइस्चर जो है वो उसको खींच के बाहर निकाल रहा है, एंड ऑटोमेटिकली अगर खींच के बाहर निकालता है तो बॉडी के अंदर में वही जो पार्ट है वो एक कूलिंग इफेक्ट टाइप का वो वहां पर लेके आ जाता है इन दैट केस. सो दैट इज व्हाट दैट इज द होमियोस्टेसिस इटसेल्फ. ये अपने पास में क्या हो जा रहा है? ये सपना बोलो. So sorry to interrupt, but I just want to ask you that आप लोग CAT की preparation कैसे कर रहे हो? Means like all the chapters you are going to take and giving the assignments, और ऐसे ही आप PPT के फॉर्म में सिखाने वाले हो 10th के जो सारे चैप्टर्स थे जो CAT में आने वाला है वो?
I don't think so. This is a PPT form, beta. We are discussing it on the basis of that of a writing part and the discussion part itself. To be frankly telling to you, beta, the syllabus of the CET tells us that although they had mentioned that it will be the 10th syllabus, but the detailed syllabus, it is saying that the topic, it is divided into that of world of living, pollution, in if I'm taking about biological section itself, okay, world of living, pollution, as well as that of the environmental science itself in that case. Okay, so whatever the topic that we are discussing now, all these topics are falling under that of the world of living. Okay, in the world of living, it tells us about that of what is life, then what are the different types of that of the plants that is existing, then cells, and all these basic jo introductory jo concepts है biology का, all these things will be falling under that of this thing itself. Okay, so whatever the unit prescribes us will be moving forward. ओके, समझ में आ बट रहा है? वर्ल्ड ऑफ लिविंग इज द स्पेसिफिक चैप्टर, बट वो 10th के टेक्स्ट बुक में नहीं था, तो उन्होंने दिया है कि सीईटी में आएगा ऐसा चैप्टर करके वर्ल्ड ऑफ लिविंग. Yes, उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है. It's a unit, that is a world of Okay. living that they had mentioned in that case. Okay. ओके, तो सर आप इनकी सब असाइनमेंट्स हम लोग को देने वाले हो क्या ग्रुप पे? Yes. You will be getting the assignments. You will be getting like I think so within like 1 or 2 days. आज या कल के अंदर में ही you will be going to get some assignments. Even I think so this Sunday you are going to have some test also in that case. Okay. Okay, and there is one app is also there for us. Hemant sir will be telling you all the details about that one. You all have to download that app, okay, within your mobile, and based on that app only, or within that app only, you will be getting all the assignments and the test and all these things itself related to this thing. Okay, fine, thank you. Clear, beta? Yes sir. Okay, great. ठीक है? Sir, Okay, so yes, beta, बोलो. what about consciousness? Yes, obviously मैं अभी उसी टॉपिक पे आने वाला था. Consciousness. Can you explain by taking an example? Can you explain by taking an example? Can you explain by taking an example itself? हाँ बेटा. Sir, can we take an example of person who is in coma? Okay. Yes, He obviously. is not consciously stable. So Okay. Okay. that property cannot be counted as a defining property, right? ठीक है. If I'm saying that particular individual organism who is in coma, like yes, Harsh, I'm coming to you, beta. The particular individual organism who is in coma, we can say that his body, it is not responding. Okay, but if you are saying about that of the internal metabolic reactions or the processes and everything itself, okay, that will be responding to that of the environment itself. अगर एक आदमी जो है जो कोमा वाले स्टेट में प्रेजेंट है, अगर तुम उस आदमी के बॉडी के या स्किन के ऊपर में अगर एक पिन को प्रिक करोगे, you can find that particular region will be showing the swelling as well as reddening kind of thing itself. Okay, so that is what, based on that you can see that like that is it is also showing a kind of that of the consciousness itself, but not an active form of that of the consciousness. But yes, obviously consciousness is what, consciousness is a feature which जो भी organisms living है, उन सब living organisms के अंदर में they will be showing that of the consciousness kind of that of the feature itself. Very good, Aditi, very good. Harsh, बोलो. Harsh beta. Sir, I am not Yes. confirm if this is consciousness, Hmm. but the seed when it is out of the fruit, it performs anaerobic respiration and it's alive inside. Yeah, So, that is also, yeah, so obviously. when we See, yeah, tell me. so when we put it in the soil, then it starts growing Hmm. and the roots and Mhm. all start growing. Yes, So when it is not in the soil, it is performing anaerobic respiration and it is Mhm. alive there also. Correct. अब अगर हम So लोग is देख it- लेंगे, you are talking about that of the germination process better. So during at the initial stage of that of the germination, until unless the seed or until unless the embryo is coming in touch with that of the external environmental condition itself, automatically it will not be getting converted into that of the aerobic environment. तुमने जो प्रॉपर्टी लिया बेटा हर्ष, मैं उसी प्रॉपर्टी से रिलेट करके मैं और एक प्रॉपर्टी के बारे में मैं तुमको बताना चाहता हूँ. Have you heard of mangroves? Have you heard about that of the mangroves? Mangroves के बारे में सुना है तुमने? है ना? Mangroves, they show a very like special feature.
मैंग्रोव्स में एक बहुत ही स्पेशल फीचर जो है वो मैंग्रोव में प्रेजेंट होकर रहता है ना। व्हाट इज द स्पेशल फीचर एक्चुअली? मैंग्रोव्स के अंदर में जो उनका जो सीड है ना, वो सीड एक्चुअली वो सीड का जर्मिनेशन जो है वो प्लांट में जब तक वो चिपके रहता है तब तक ही वो ऑकर करता है। मतलब व्हाट आई वांट टू से दैट, like if suppose like if I'm taking the example of any of the other plants, okay, कोई भी प्लांट्स के लिए नॉर्मली सीड जर्मिनेट कब करता है? जब वो सी प्लांट जो है वो जब सीड से जब वो डिटैच्ड हो जाएगा तो वो सीड से डिटैच्ड हो जाने के बाद तभी वो वहां पर जर्मिनेट करता है। बट इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द मैंग्रोव्स इटसेल्फ, मैनग्रोव्स वगैरह के लिए अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैनग्रोव्स वगैरह के लिए अपने पास में यहाँ पर ये जो फ्रूट है, सबसे पहले नाउ दिस फ्रूट इट विल बी जर्मिनेटिंग व्हाइल इट इज रिमेनिंग अटैच्ड टू द मदर प्लांट इटसेल्फ। एंड ये जर्मिनेट रहते रहते ये क्या काम कर देगा? इट विल बी रिलीजिंग इट्स रेडिकल, मतलब जो रूट वाला जो सेक्शन है वो अपने अंदर में से वो यहाँ पर रिलीज करवाता है। एंड जब वो अपने रूट वाला सेक्शन को अपने अंदर से रिलीज करवा देगा तो वो रेडिकल ग्रेजुअली ग्रो करके इट विल बी टचिंग द ग्राउंड। एंड जो मैनग्रोव्स हैं वो मैनग्रोव्स हेलोफाइट्स होते हैं, मतलब सॉल्ट लविंग, मतलब बीच वगैरह कोस्टल एरियाज में वो प्रेजेंट होकर रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो रेडिकल है वो रेडिकल वो यहाँ पर ग्रो करके इट विल बी टचिंग दैट ऑफ द ग्राउंड इटसेल्फ, इट विल बी असेसिंग अबाउट दैट ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ दैट ऑफ द सॉइल इटसेल्फ। एंड उसी के बाद ये जो सीड है इस सीड में से फॉर द प्लूमूल एंड एटसेट्रा अदर पार्ट्स इट यूज्ड टू गेट डेवलप्ड इटसेल्फ। ओके, that is also a kind of that of the adaptation, and you can say that this like response it is occurring because of that of the consciousness itself. Okay, ठीक है बेटा, हर्ष समझ में आया? So we can say that अगर हम लोग फिर यूनिक फीचर्स ऑफ द लिविंग के लिए अगर हम लोग ले लेते हैं तो यूनिक फीचर्स ऑफ द लिविंग के लिए अपने पास में आ जाएगा, वी कैन से दैट द मेटाबॉलिज्म अपने पास में आ जाएगा, द रिस्पॉन्सिवनेस अपने पास में आ जाएगा, द एडेप्टेशन आ जाएगा, होम्योस्टेसिस आ जाएगा। ये जितने भी सारे ये फीचर्स अपने पास में होंगे वो सारे फीचर्स अपने पास में यहाँ पर यूनिक फीचर ऑफ द लिविंग के अंदर में ऑल दिस फीचर इट विल बी लाइक प्रेजेंट इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, ठीक है? एनी डाउट? बोलिए, किसी के दिल में कोई डाउट चल रहा है? निकेत बोलो, कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? हाँ जी, एनीबडी? नो, वेरी फाइन। सो टुडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दैट ऑफ द लिविंग, लाइफ एंड दैट ऑफ द स्पेशल फीचर। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग लास्ट वीक तक हम लोग सेल्स वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, तो ऑब्वियसली वो एक लिविंग वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, आज हम लोग यहीं पर ही रखेंगे, इसी वर्ल्ड ऑफ लिविंग वाले पॉइंट को ही हम लोग और ज्यादा इलाबोरेट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ। ओके, मीनवाइल इफ यू डू हैव एनी डाउट अबाउट रिलेटेड टू दैट ऑफ द सीईटी इटसेल्फ और एनी काइंड ऑफ like your career itself, like NEET and everything, because मेरा मेन स्पेशलाइजेशन नीट से ही रिलेटेड है, मेडिकल से, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड ऑल द काइंड ऑफ बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स प्रिपरेशंस इटसेल्फ, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी एट माय कांटेक्ट नंबर। ग्रुप्स में ही मेरा कांटेक्ट नंबर है, माई सेल्फ इज जो लोग नए जुड़े हैं एसबी सर, तो यू कैन कांटेक्ट मी ऑल द टाइम इन दैट केस। ओके, ठीक है? तो कोई डाउट? आई थिंक सो यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट। हाँ बोलो, बोलो बेटा, बोलो, अपर्णा बोलो। सर, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर आप मींस कैसे सिखाने वाले हो? बिकॉज़ वो चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, लाइक फाइलम्स वी हैव टू लर्न एंड एग्जांपल्स। So you said in the starting of the lecture that learning the names is not a difficult task in biology. So how will be taking that? Let me come to that point. ठीक है बेटा, let's first of all let's start about that of the plant diversity and then with animal diversity itself, and I'll explain you that how to deal with that one. Okay. Okay. Yes. Because see beta, if I'm telling you now, you'll be not able to relate with the same. ठीक है ना? There are many ways. There are many ways. Like you can remember the names of that of the organisms with the help of that of their characteristics itself. I don't believe in mnemonics. आप बहुत आपको mnemonics वगैरह आप लोग बनाते हो रहेंगे and everything. But I believe that अगर आप जितना ज्यादा बायोलॉजी में इतने एग्जाम्पल्स है ना यार, इतने एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो लाइक रिलेटेड भी होते हैं, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स में आप अगर न्यूमोनिक्स बनाने जाओगे यार, आप खुद उसमें मतलब घूमते रह जाओगे, इतने न्यूमोनिक्स बनेगा तो, है कि नहीं? एग्जाम के टाइम पे फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे। तो उससे बेटर ये है कि वी कैन लाइक रिमेंबर द नेम्स ऑफ दैट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे आप सिंपली अगर मैं प्लांट किंगडम चैप्टर के बारे में, जैसे तुमने एनिमल डाइवर्सिटी मैंने बोला, मैं अगर प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में बात करता हूँ, तो प्लांट डाइवर्सिटी वगैरह के लिए भी वी कैन से दैट वी कैन टेक ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल फीचर्स एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन रिमेंबर इन दैट केस। ठीक है अपर्णा? एक चीज याद रखना अपर्णा यार,
कि एनिमल डाइवर्सिटी फिर भी स्टूडेंट्स लोगों को इजीली पिकअप हो जाता है। क्यों पिकअप हो जाता है? बिकॉज जैसे आप लोगों ने पहले बोल दिया यार जूलॉजी फेवरेट है सर, जूलॉजी फेवरेट है, तो एनिमल्स को रिलेट करते हो। बट अगर हम लोग प्लांट्स के लिए देखते हैं ना, तो वो प्लांट डाइवर्सिटी वाला जो सेक्शन है बहुत ईजी है लर्न करना, बट एज बिकॉज स्टूडेंट रिलेट नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट देयर आर मेनी काइंड ऑफ ट्रिक्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, विल सी Okay, sir. ग्रेजुअली इन द क्लासेस। ओके, चलो ठीक है, आज हम लोग Yes. यहीं तक ही रखते हैं। ओके, एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? बोलिए, किसी को No, कोई sir. डाउट है? नो डाउट, No, sir. एनीवन? No, sir. Great. If you people are having any kind of doubt, okay, related to any kind of thing itself, you can always text me. My WhatsApp number is always open, and even I think so other teachers also. मेरा WhatsApp Sir, number sir, I have a doubt. Sir, I have a doubt. yes, बोलो ना सर मैम। अभी जो संडे को टेस्ट होगा उसमें कौन से टॉपिक्स, मतलब अभी जो क्लासेस में सिखाए, अभी तक वही। जो क्लासेस में सिखाए उसी टॉपिक्स के रिलेटेड में टेस्ट होगा या उसी कौन टॉपिक्स से? के वर्ल्ड ऑफ लिविंग के रेस्पेक्ट में आज तक का हमने जितना पढ़ाया हुआ है ना, उतने ही टॉपिक से रिलेटेड में आपके सर ऑब्जेक्टिव्स हो गए ना? क्या बेटा? ऑब्जेक्टिव्स ही यार। ऑब्जेक्टिव्स। यस सेजल, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा मजा आता है ना। हाँ। Yes, sir. राइटिंग से, इसीलिए तो सारे एंट्रेंस टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है, बट ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग भी होता है ना। नीट में अगर मैं देख लूं तो +4 हाँ, एंड sir. -1 रहता है लेकिन ना? लेकिन थैंकफुली में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। करेक्ट। एक चीज आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा, मैं आप सब लोगों को एक जस्ट सिंपल एडवाइस जाते जाते मैं दे दूं। एक चीज ध्यान पे रखो, आप लोग सब अभी 10th स्टैंडर्ड में हो। अभी 10th स्टैंडर्ड में जब हो, अभी एट द वर्ज ऑफ द एंडिंग ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड यू आर देयर। ओके, इसके बाद में आप लोग कोई जेई में जाएगा, कोई नीट में जाएगा, कोई दूसरे फील्ड्स में जाएंगे। ओके, बट जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स में आप जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जब प्रिपेयर करोगे, चाहे वो जेई हो या नीट हो, स्पेशली अगर वो नीट हो, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इसमें नीट के लिए जैसा 10th में आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होती थी बोर्ड्स एग्जाम के लिए, भाई हमें सब करके आना है, जितना भी पूरा पेपर मुझे सॉल्व करके आना है, स्टेप बाय स्टेप भी मैं अगर लिख के आऊं तो स्टेप बाय स्टेप भी मेरे पास में मार्क्स लाने के चांसेस हो जाते हैं, है कि नहीं? बट यहाँ पर जैसे ही आपको नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप देने जाते हो ना, आपका सिनेरियो यहाँ पर चेंज हो जाता है। डू रिमेंबर, प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ता है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि नीट वगैरह के लिए 0 मार्क्स इज ऑलवेज बेटर देन दैट ऑफ -1। मतलब पूरे टोटल में ग्रॉस में 0 नहीं, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 0 मिलना, इट इज बेटर देन दैट ऑफ -1। अगर -1 मिलेगा ना तो तुम्हारा मार्क्स ऑटोमेटिकली घटते बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। ऐसे मैंने बहुत स्टूडेंट्स लोगों को देखा है जो हाईली मतलब कॉन्फिडेंट स्टेटस में रहते हैं, फिर भी उनका मार्क्स घट जाता है। ओके, सो बी प्रैक्टिकली थिंकिंग। अभी धीरे धीरे अपने माइंड सेटअप को ये चेंज अप कर लो कि भाई मैं 10th में इतना पढ़ लिया था, 10th इज नथिंग, 11th एंड 12th इज द मेन वन, बिकॉज दैट विल डिसाइड योर करियर। कोई भी फील्ड में आप जाओ, चाहे वो आप पॉलिटेक्निक में जाओ, चाहे वो आप कॉमर्स में जाओ, चाहे वो आप मेन फील्ड साइंस का जो मेन फील्ड है दैट इज द नीट एंड जेई, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आप लोग साइंस सिलेक्ट करने वाले हो, जो नीट एंड जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने माइंड सेट को इस तरीके से चेंज करो कि भाई हमें प्रैक्टिकली सोचना है, टाइम स्पैन को, टाइम लिमिट को मुझे रख के पढ़ना है, स्टॉप वॉच को ओपन करके पढ़ना है, एंड मुझे देखना है कि मैं कितना ज्यादा एक्यूरेट हूं। आई हैव टू सी दैट हाउ मच एक्यूरेट आई एम। ये सब पूरा खेल ही जो है ना वो एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना। पूरा खेल, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो। अभी तुम लोगों के सामने पहला एंट्रेंस एग्जाम सीईटी आ रहा है, इसके बाद में दूसरा एंट्रेंस एग्जाम्स आएंगे। ओके, जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होता है वो पूरा खेल ही वी कैन से दैट वो एक्यूरेसी के ऊपर है। जितना कंसेप्ट तुम लोगों का अच्छा है, उसको अगर एक्यूरेटली जितना लगाओगे, उतना ज्यादा मार्क्स तुम लोग ला सकते हो इन दैट केस। ओके, हाँ अश्विन बोलो। अश्विन, एनीथिंग यू आर सेइंग? नो, ओके, ठीक है। चलिए, बाय दिस आई एम एंडिंग माय सेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, मस्त और भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, एंड विल सी हाउ टू प्रोसीड विद दैट ऑफ द पार्ट इटसेल्फ। ओके, चलिए, मीनवाइल थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय, थैंक यू बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ, बाय बेटा, बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बेटा, थैंक यू, बाय।